اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ میں پہلے بھی سورہ الزلزال جو ہے قرآن مجید کا 99 نمبر کا سورہ ہے 99، اور اس میں کل آیات الہیہ جو ہیں وہ ہیں 8، اور اس وقت کا جو موضوع ہے وہ موضوع جو ہے آیت نمبر 7 اور 8 وہ ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، اور آج ایک نیا زاویہ لے کر آیا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کی نظر کرم جو ہے اس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے کے قابل ہوتا ہوں۔ سورہ الزلزال 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ ہے۔ اس کا نشان جو ہے 99 ہے۔ اس میں کل 8 آیتیں ہیں، اور قبل اس کے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں، میں اردو زبان میں ایک لفظ ہے سبک، سین بے کاف پیش، سبک، اور بے پہ تشدید ہے، سبک، بے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، سین بے تشدید کاف اور پیش، سبک۔ سبک مطلب ہے معمولی، یعنی جس کو معمولی کہتے ہیں، سبک رفتار ہے یہ جانور جو ہے، یہ سبک رفتار ہے، بہت آہستہ چلتا ہے۔ تو سبک جو معنی میں آتا ہے وہ ہے آہستہ، آہستہ، سبک، معمولی، مطلب معمولی سمجھیے آپ اس کو۔ تو پہلی آیت میں یہ ہے، جس دن بھونچال آئے گا زمین زور سے ہلائی جائے گی، اور اسی سے زلزال سے ہی زلزلہ ہے، سورہ الزلزال، زمین زور سے ہلائی جائے گی۔ اور آج یہ ہو رہا ہے کہ اگر عیسائیوں کے یہاں دیکھ لیں، یہودیوں کے یہاں دیکھ لیں، مسلمانوں کے یہاں دیکھ لیں، جن کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ مردے کو سپرد خاک کیا جائے، چاہے وہ کافن میں رکھ کے کیا جائے، چاہے اس کو کفن پہنا کر اس کو قبر کے حوالے کیا جائے، آسودہ خاک کیا جائے، یعنی سپرد خاک کیا جائے، یا جو لوگ اپنے مردے کو دفن کر دیتے ہیں، وہ خاص الخاص اس آیت پہ توجہ ضرور دیں۔ پہلی آیت یہ کہ جس دن زور سے زمین ہلا دی جائے گی، بھونچال آ جائے گا، زلزلہ، اس دن زمین اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں، بوجھ ہے، اس کو باہر نکال پھینکے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تمام معدنیات زمین کے اندر ہے، تیل، پٹرول، جتنی معدنیات ہیں سب زمین کے اندر ہے۔ آپ یہاں تک کہ اپنے مردے کو زمین کے سپرد خاک کرتے ہیں، زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ مگر اس دوسری آیت میں دوسری بات کہی جا رہی ہے، جس دن زمین اپنے اندر کی جتنے بھی بوجھ ہیں اس کو نکال باہر پھینکے گی، یعنی جتنی قبریں ہیں اس میں سے مردے اٹھیں گے، جتنی معدنیات ہیں سب باہر آ جائیں گی، جتنی چیزیں بھی زمین کے سپرد کی گئی ہیں زمین واپس کر دی جائے گی۔ تو ایک شخص پوچھے گا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زمین کہے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہوا ہے کہ میں اپنے اندر کے تمام بوجھ کو نکال باہر کروں۔ زمین کہے گی اس ایک شخص سے۔ تو تمام لوگ اپنے نامہ اعمال کا حساب کتاب لیے ہوئے رواں دواں ہوں گے، نکل جائیں گے۔ اور 7ویں اور 8ویں آیت غضب کی آیت ہے کہ جس میں رتی برابر خیر ہوگا، نیکی ہوگی، وہ بھی دکھا دوں گا۔ جس میں رتی برابر، معمولی سے معمولی، آ گیا نا سبک کا لفظ، معمولی، جس میں رتی برابر معمولی سے معمولی نیکی ہوگی وہ بھی دکھاؤں گا، جس میں رتی برابر معمولی سے معمولی شر اور برائی ہوگی وہ بھی دکھا دوں گا۔ تو یہاں پہ رکتے ہوئے صرف ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ دنیا کی کیلکولیشن تو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کو یہ مارکنگ میں یہ نمبر دیا جا رہا ہے، وہ نمبر دیا جا رہا ہے، وہ مارک دیا جا رہا ہے، وہ نمبر دیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کی جو مارکنگ ہو رہی ہے، حساب کتاب جو ہو رہا ہے، جو یہاں پہ مثبت لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں منفی لکھنے والے بیٹھے ہیں، یہاں اچھی بات سوچی لکھ دی،
यहाँ बुरी बात सोची, अभी उसने लिखा नहीं है, जब तक कि अमल सरजद नहीं होगा उस वक्त तक लिखेगा नहीं वो। करामन कातिबैन, करामन कातिबैन जो बिठाए हुए हैं, जो अच्छी बात सोच ली वो लिख दी, बुरी बात सोची जब तक की नहीं लिखेगा नहीं वो। कि ऐसा अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, किसी भी छोटी सी छोटी नेकी को सुबुक मामूली मत जानना, किसी भी छोटी सी छोटी बुराई को सुबुक मामूली ना जानना। हम छोटी सी बुराई करके आम जिंदगी में गुजर जाते हैं, पूरी महफिल हंसी मजाक में गुजर जाती है, एक दूसरे पे तंज करते हुए, हम उसे कुछ समझते ही नहीं हैं। हम दूसरे का माल खाए बैठे हैं, आंखें चार करके बातें कर रहे हैं, हमें वो बात बुरी लगी नहीं रही है। हम लोगों की ग़ीबतें एक दूसरे के साथ बैठ के कर रहे होते हैं महफिल में, और बुराई कर रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं, क़हक़हा लगा रहे होते हैं। क़हक़हा लगाने को तो अल्लाह ताला ने वैसे ही ममनू करार दिया कुरान मजीद में कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है, चाहे उसमें इक़्तिदार अली ख़ान शामिल हों या कस्से बाशत कोई भी हो। जब नहजुल बलागा मैंने पढ़ी तो नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो कौल भी मुझे नज़र आया कि मिज़ाह की भी ममानियत है, जबकि हम मिज़ाह को अदब का हिस्सा समझते हैं। मिज़ाह, मज़ाक, शौक़ी, मज़ाक और शौक़ी की तो गुंजाइश ही नहीं है। मगर मैंने कभी ये नहीं समझा था कि मुझे एक ऐसा कौल भी मिलेगा अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बलागा में कि मिज़ाह की मज़म्मत होगी। मिज़ाह को भी पसंद नहीं किया गया है। और क़हक़हा लगाना, और क़हक़हा लगाने को तो अल्लाह ने कहा है सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क़हक़हा लगाने की ममानियत है। और जो ग़ीबतें हम करते हैं, जो हम माल खाए बैठे हैं लोगों का, जो हम लोगों को उनकी रकम अदा नहीं कर रहे हैं, उनके कर्ज़े लिए बैठे हुए हैं वो अदा नहीं कर रहे हैं, हम अहद शिकनी करते हैं कदम कदम पे, नहीं आना होता है तो हम लफ्ज़ इंशाअल्लाह इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा। आप काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ नहीं आए, इक़्तिदार अली ख़ान बोल रहे हैं इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। अल्लाह क्यों नहीं चाहता है कि आप दूसरे की दाद-रसी करें? अल्लाह क्यों नहीं चाहता है कि आप दूसरे की ख़बरगिरी करें? अल्लाह क्यों नहीं चाहता है कि आप सले रहमी करें? अल्लाह क्यों नहीं चाहता है कि आप नेक अमाल बजा लाएं? क्योंकि नीयत सही नहीं है तो हम इंशाअल्लाह बोलते हैं। नीयत हमारी अगर अच्छी होती, खालिस होती, मैं इंशाअल्लाह कल नमाज़ पढ़ूँगा फ़जर की, और अज़ान के वक्त मैं सो गया करवट लेके, जो अमूमन हो जाता है, तो क्या मेरी नीयत खालिस थी? इन्नमल अमालु बिन्नियात कहा जाता है, अमल का दारोमदार नियतों पे है। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता। मैंने नियत की थी कि मैं फ़जर के वक्त नमाज़ पढ़ूँगा, ये मैंने नियत की थी, मगर जब मैंने अज़ान सुनी तो करवट लेट करके करवट बदल के मैं सो गया। अगर मेरी नियत खालिस होती तो मैं वज़ू करके मुसल्ले पे आता। इसका मतलब है कि नियत का, अमल का दारोमदार नियत पे नहीं है। नियत में अगर खोट है तो ये सिर्फ धोखाबाजी है। इंशाअल्लाह मैं आपके आऊँगा। अल्लाह क्यों नहीं चाहेगा कि आप ख़बरगिरी करें अपने अजीज़ों की, अपने बीमारों की, उनकी इयादत करें, इनकी मिजाज पुरसी करें, उनकी खैरियत दरियाफ्त करें। अल्लाह चाहेगा, क्योंकि हमारी नीयत होती है कि नहीं जाएंगे तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा आपके यहाँ। देखिए, आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह का मिसयूज़ किस तरह से हो रहा है। सारी गुफ्तगू हम कर जाते हैं, अखबार पे अखबार छप रहे हैं, कोई चैनल मुझे दिखाइए, कोई अखबार मुझे दिखा दीजिए जिसमें लफ्ज़ इंशाअल्लाह लोग इस्तेमाल करते होंगे। अगले साल हम इलेक्शन में खड़े होंगे, अगले एक सांस आई दूसरी का नहीं पता है। आपको कैसे पता कि अगले साल आप ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं पता ना। तो हम जो आम ज़िंदगी में ग़ीबत कर रहे होते हैं, माल खा रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, एक दूसरे का तमस्खुर उड़ा रहे होते हैं, तज़हीक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपने से नीचा समझ रहे होते हैं, उनको खातिर में नहीं लाते हैं, उनको किसी गिनती में नहीं लाते हैं। ये छोटी छोटी बुराई जिसको हम सुबुक जान रहे हैं, मामूली जान रहे हैं, जिस पर क़हक़हा लगा रहे हैं, तो मौला कायनात ने नहजुल बलागा में उसकी ममानियत की है। किसी भी अमल को सुबुक मामूली मत जानना। हो सकता है कि अगर वो मनफी हो तो पलड़े को झुका दे और वज़न तुम्हारे बुराई में भारी हो जाए। किसी नेकी को सुबुक मत जानना, हो सकता है कि ये बुराई के पलड़े को भारी कर दे और उसको झुका दे। जो वज़न भारी होंगे,
अच्छाई के वज़न भारी होंगे, जन्नत के हकदार, बुराई के वज़न भारी होंगे, जहन्नम के हकदार। तो सूरह अल-ज़लज़ाल 99 नंबर का सूरा, और उसके आखिरी आयत में यही है 7 और 8 में, जिसमें अल्लाह कहता है कि किसी भी अमल को, खैर को रत्ती बराबर तुमने जो किया होगा वो भी दिखाऊंगा, और तुमने रत्ती बराबर कोई शर किया होगा बुराई, वो भी तुम्हें मैं दिखा दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे लाके एक जुमला कह के आपसे इजाज़त लेता हूँ कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे शाहकार को देख के, जो मैंने खल्क़ किया है, मैं मुसव्विर हूँ, मेरे शाहकार को देख के मुझे पहचानो कि जिसकी तख्लीक इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन तरीन है कि मैंने क्या कुछ कायनात नहीं सजाई और बनाई, क्या कुछ नहीं बनाया, उस पर गौर करो, फिक्र करो। इतनी हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन दुनिया तुमको सजा के, कायनात सजा के तुमको तुम्हारे हवाले किया, तुमको दिया, उससे मुझे पहचानो कि मैं कैसा मुसव्विर हूँ। यही चीज़ों को 14 मासूमीन ने कहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और मौला अली से लेके हुज्जत खुदा 12वें इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये 14 मासूमीन ने इसी बात को कहा है, तुम चुप रहना, ज़बान का इस्तेमाल कम से कम हो, तुम्हारे आज़ा बोलें, तुम्हारे हाथ गवाही दें, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बताए, तुम्हारा किरदार बताए, तुम्हारा पाँव का चलने का अंदाज़ बताए कि तुम मस्जिद की तरफ जाते हो या वहाँ जहाँ खुदा देखना नहीं चाहता है वहाँ जाते हो, तुम हाथ बेजा उठाते हो या सलाम के लिए उठाते हो। तो अल्लाह ताला 14 मासूमीन ने कहा खामोश मुबल्लिग बन जाओ। चाहने वाले ने कहा फर्जंद रसूल, मुबल्लिग का ताल्लुक़ बोलने से है, आप कहते हैं बोलो भी नहीं और मुबल्लिग भी बन जाओ। कहा तुम्हारा किरदार बोले। नहजुल बलागा में जनाब अमीर नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो दीन, वो मज़हब, वो इस्लाम बेकार है जो हाथ पैर और ज़बान से ज़ाहिर ना हो रहा हो। अल्लाह ताला के शाहकार को देख के उसको पहचानो कि वो माबूद हकीकी है, वो अल मुसव्विर है, जिसने ये कायनात खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन 200-300 से ज़्यादा कहकशाएँ दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिसमें अरब खरब सूरज हैं, चाँद हैं, सितारे हैं, सैयारे हैं। बाखुदा अली ज़मीन से ज़्यादा आफलाक के रास्तों से आगाह है। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या इंजाम होगा, मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ मगर नहीं बताऊँगा, इसलिए कि ऐसा ना हो कि तुम मुझ में गुम हो जाओ और ज़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरामोश ना कर बैठो, मैं तुमको नहीं बताऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शाहकार देखिए, अल्लाह को पहचानिए, खामोश मुबल्लिग बन जाइए, आपका हाथ गवाही दे, आपका प्रेजेंटेशन, आपका उनके साथ रवैया गवाही दे, आपका पैर, हाथ, कान, ये आप ज़बान खामोश रहेगी, आपका किरदार बोलेगा कि किस इमाम का मानने वाला है, किस नबी की उम्मत है, किस नबी का मानने वाला है, किस खुदा को मानता है। ये अपने खुदा का तारुफ़ कराइए, अपने नबी का तारुफ़ कराइए, अपने इमामों का तारुफ़ कराइए। मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।